Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to maths class. I, Ajal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, as you know that we have started with a new exercise yesterday. That is exercise 8.8, and in that exercise we have started with statement sums. Okay, so हमने उसमें statement sums से start किया था. So we have already done first and second sum of exercise 8.8, and today we are going to start the next few sums. So are you ready for it? Okay, so let's start with it. Okay, as you can see in the third question of exercise 8.8, I have given you as the homework. तो मैंने आपको 8.8 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो होमवर्क दिया है. इफ यू हैव डन दैट इज वेरी गुड, रियली गुड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन क्लियर इट फ्रॉम हियर नाउ. Okay, so shall we begin? Okay, so the question was, Rosa read 1/8 part of a book or 1/8 part of the book on Monday and 5/8 on Tuesday. What part of the book had she read? Okay, so हमें बताया there is a girl whose name is Rosa, और उसने उस बुक का जो 1/8 पार्ट है, 1/8 पार्ट है वो मंडे को रीड किया और 5/8 पार्ट है वो ट्यूसडे को रीड किया. तो यू हैव टू टेल कि उसने टोटल कितना पार्ट उस बुक का रीड कर चुकी है. ओके, यू हैव टू टेल दैट हाउ मच टोटल पार्ट डिड शी रेड ऑफ दैट बुक. ओके, सो दैट मीन्स सबसे पहले हमें जो द पोर्शन और द पार्ट ऑफ बुक दैट शी हैज रेड ऑन मंडे एंड द पोर्शन ऑफ बुक दैट शी हैज रेड ऑन ट्यूसडे, मतलब जितना पोर्शन उसने मंडे को रीड किया और जितना पोर्शन उसने ट्यूसडे को रीड किया, अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें तो वी विल इजिली गेट द टोटल पोर्शन ऑफ द बुक दैट शी हैज ऑलरेडी रेड इन दैट 2 days, मंडे एंड ट्यूसडे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. Okay, so first of all let me write the exercise number, that is exercise 8.8. Okay, so सबसे पहले हम लिखेंगे what will be the statement. The statement will be part of book read on Monday. Part of book read on Monday. So this is question number 3. Part, आप चाहे तो part या portion कुछ भी लिख सकते हैं, that is up to you only. Part of book read on Monday. मंडे को जितना पार्ट बुक का रीड किया था कितना है, दैट इज 1/8. दैट इज 1/8. ओके, तो मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है बेटा, सो इसलिए मैं इसको थोड़ा चेक कर दूँ बिकॉज वहां पे इस पोर्शन में था. लेट मी राइट इट अगेन. थर्ड इज part of book read on Monday. कितना पार्ट ऑफ बुक उसने रीड किया, दैट इज 1/8. So the 1/8 part of a book that Rosa has read on Monday. Next is part of book read या read on Tuesday. ट्यूसडे को उसने कितना पार्ट रीड किया था, दैट इज 5/8. So the part of book that she has read on Monday and the part of book that she has read on Tuesday is given. On Monday she has read 1/8 part and on Tuesday she has read 5/8 part of that book. 5/8 पार्ट मीन्स या 1/8 पार्ट मीन्स मतलब उस बुक को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो दैट मीन्स कि दैट बुक इज डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट पार्ट्स. उसका जो 1 पार्ट था वो उसने मंडे को रीड किया 1/8 पार्ट, और 5/8 पार्ट था उसने ट्यूसडे को रीड किया. और हमें इसमें क्या बताना है, व्हाट पार्ट ऑफ बुक दैट शी हैज रेड, मतलब उसने टोटल कितना पार्ट रीड कर लिया है. ओके, तो टोटल part of book, total part of books read या read, जितना वो पढ़ चुकी है. कैसे पता लगेगा, by adding 1/8 and
5/8. सो दैट मीन्स उस बुक को जो 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था उसमें से 1/8 पार्ट उसने मंडे को रीड किया. 5/8 पार्ट शी हैज read on Tuesday. So now you have to tell the total number of part that she has already read. What portion of book she has already read? So let see here. Okay, both are having the same denominators. So that's why I'm going to write it like this. Okay, common. So here I have taken the common denominator 8. Okay, तो इन दोनों का common denominator हो गया because both are having the same denominator. So their common denominator is 8. Now we are going to add their numerators by adding 1 and 5. अब हम 1 और 5 जो हमारे numerators हैं उन दोनों को क्या करेंगे add. So 1 plus 5 is equal to 6 and denominator will be same, that is 8. So that means she has read 6/8 part of this book on the Monday and Tuesday. So she has read 6/8 portion of the book on the 2 days, that is Monday and Tuesday. Okay, so this is your answer, but you have to write the solution sentence also, that I'll write down after erasing this, but let me just explain the sum one more time so that if there is any confusion that will be clear. Okay, देखिए हमारे पास दिया था कि that a girl whose name is Rosa, she has read a book. उसने एक बुक रीड की थी on Monday and Tuesday 2 दिन में. तो उस बुक का जो 1/8 पार्ट है शी हैज रेड ऑन मंडे. देखिए द पार्ट ऑफ बुक रेड ऑन मंडे दैट इज 1/8. नेक्स्ट डे ऑन ट्यूजडे शी हैज रीड 5/8 पार्ट ऑफ द सेम बुक. उसी बुक का जो 5/8 पार्ट है उसने ट्यूजडे को रीड किया. सो इसलिए हमने यहाँ पे लाइन लिखी पार्ट ऑफ बुक रेड ऑन ट्यूजडे, दैट इज 5/8. ओके, नेक्स्ट नाउ वी हैव टू टेल द टोटल पार्ट उसने 2 दिन में जितना पढ़ा है, कि उसने 2 दिन में कितना पोर्शन है जो उस बुक का रीड कर लिया है. सो दैट मीन्स द टोटल पार्ट ऑफ बुक रेड. टोटल पार्ट ऑफ बुक रेड. हाउ वी विल फाइंड आउट दैट? वी आर गोइंग टू फाइंड इट बाय एडिंग 1/8 and 5/8. So after adding 1/8 and 5/8 we got 6/8. So that means she has read 6/8 part of that book in those 2 days, that is Monday and Tuesday. Okay, so this is the solution of question number 3 of exercise 8.8. So you can just pause the video here beta and write down the solution. Okay, after this you have to write down the solution sentence also. मैंने आपको हमेशा बताया कि that end of every question, especially statement sums, try to write the solution sentence. Though मतलब near about 98% of the students have not written the solution sentence in the UT1. मतलब इतना बताने के बावजूद भी UT1 में आप में से 98% बच्चों ने कोई भी सॉल्यूशन सेंटेंस नहीं लिखा है. और इतना बताने के बाद कि हर स्टेटमेंट सम या कोई भी सम हो तो उसको पूरा एक्सप्लेन करते, अदर देन MCQ आपको हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है. बट स्टिल सम हैव डन डायरेक्टली आंसर्स लिखे हैं, जैसे ऐसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करके से डायरेक्टली आंसर्स दे दिए. सो दैट इज कंसीडर्ड मतलब टोटली रॉन्ग. दैट इज टोटली रॉन्ग एंड आई हैव टेकन इट इन द रॉन्ग वे ओनली. ओके, चलिए. सो दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू राइट डाउन द सॉल्यूशन सेंटेंस ऑल्सो. इसके बाद आपको लिखना है, इसलिए अभी जो मैं लिखने लगी हूँ सॉल्यूशन सेंटेंस, दैट इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.8. Okay, so the solution sentence is therefore 6/8 part of the book, therefore 6/8 part of the book was read by Rosa on, not on, but therefore 6/8 part of the book was read by Rosa on Monday and Tuesday. तो मंडे और ट्यूसडे को उसने 6/8 पार्ट है जो उस बुक का रीड किया था. दिस इज द सॉल्यूशन सेंटेंस. देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लास्ट में पूछा जाता है, दैट विल बी द सॉल्यूशन सेंटेंस ओनली. Therefore 6/8 part of the book was read by Rosa on Monday and Tuesday. Okay, so this was your question number 3 of exercise 8.8.
Let's move to the next question. Question number 4. That is, Shilpa bought 8/9 meter cloth and used 3/8 meter. How much cloth is left with her now? ओके, देखिए अब क्वेश्चन चेंज हो गए ना. इससे पहले हमने क्या किया था और अब क्या किया, देखिए डिफरेंस. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देयर इज अ गर्ल हुज नेम इज शिल्पा, और उसने एक जो क्लोथ है कपड़े का 8/मीटर क्लोथ खरीदा है. ओके, शी हैज बॉट 8/मीटर क्लोथ, 8/9 मीटर क्लोथ, और उसका उसने 3/9 मीटर जो क्लोथ है वो यूज कर लिया है. शी हैज मेड अ सूट और वट एवर शी वॉन्ट्स टू मेक, उसने उसको यूज कर लिया. अब आपको बताना है जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है वो कितना है. ओके, तो देखिए यहाँ पे दो चीज दी हुई है. द टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ इज गिवन, द पोर्शन ऑफ द क्लोथ दैट इज ऑलरेडी यूज्ड बाय हर इज ऑल्सो गिवन, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द portion or the part of the book, sorry, part of the cloth is left, that is left. Okay, so let's find out. Moving to the question number 4. Okay, so let me raise it first. Okay, देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या होगी. देखिए द फर्स्ट थिंग इज गिवन हियर इज द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ. तो आप भी वही लिखेंगे, टोटल क्लोथ या टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ. टोटल लेंथ या टोटल लेंथ है, क्या है, टोटल क्लोथ बॉट, नॉट टोटल लेंथ नहीं दी हुई है. टोटल क्लोथ जितना खरीदा है तो उसके बारे में लिखेंगे. टोटल क्लोथ बॉट, कितना खरीदा, टोटल क्लोथ बॉट इज इक्वल टू, दैट इज 8/9 meter. 8/9 meter. Okay. Next is, and use 3/9 meter. Okay. Cloth used. क्लोथ कितना उसने यूज कर लिया, क्लोथ यूज्ड दैट इज 3/9 meter. So cloth use कितना है, 3/9 meter. And now you have to find out the length, you have to find out the cloth left. How much cloth is left with her now? Okay, so you have to find out the cloth left. Cloth left. कितना बच गया, टोटल दिया हुआ है, यूज किया हुआ दिया हुआ है. जो अगर हम टोटल में से जो ऑलरेडी यूज है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट द लेंथ ऑफ द क्लोथ दैट इज लेफ्ट. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 8/9 minus 3/9. Okay, so now we are going to subtract 8/9 minus 3/9. Okay, so let's subtract them. They are having the common denominators, that is 9, that is I am taking here again 8 minus 3. Now we will subtract the both denominators. Okay, दोनों denominators आ गए, that is 8 minus 3. So after subtracting 3 from 8, what will we get? We will get 5/9 meter. We will get 5/9 meter. Okay, अभी मैं इसको प्रॉपरली आपको करके दिखाती हूँ. जस्ट वेट अ सेकेंड. 8/, ठीक है. So that is next we are going to subtract it by taking the common denominator, that is 9 minus 8 minus 3. That is 8 minus 3 is 5 and 9 is the denominator. So the cloth left is 5/9 meter. Cloth left is 5/9 meter. इसके ऊपर नीचे आप सोल्यूशन सेंटेंस लिखेंगे, दैट आई एम राइटिंग हियर. देयरफॉर क्लोथ लेफ्ट इज 5/9 मीटर. ओके, सो देखिए ये आपको ये सॉल्यूशन सेंटेंस है, यू हैव टू राइट इट आफ्टर दिस. आई एम नॉट हैविंग द प्रॉपर स्पेस, तो इसलिए मैंने साइड में लिखा है, बट आपको ये लाइन इसके आंसर के नीचे लिखनी, दैट इज अवर सॉल्यूशन सेंटेंस. ओके, सो देखिए दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 4.
ऑफ एक्सरसाइज 8.8। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि द टोटल जो क्लोथ है, जितना जो कपड़ा है वो बॉट किया गया, परचेज किया गया, खरीदा गया है, उसकी लेंथ दी गई थी, दैट इज 8/9 मीटर। सो द सेंटेंस दैट वी हैव, द स्टेटमेंट दैट वी हैव रिटन हियर इज टोटल क्लोथ बॉट। नेक्स्ट उसने कहा था क्लोथ यूज्ड, कि कितना क्लोथ उसने यूज कर लिया। सो दैट इज क्लोथ यूज्ड, क्लोथ कितना उसने यूज कर लिया, दैट इज 3/9 मीटर। ओके, आफ्टर दिस हमें बताना है क्लोथ लेफ्ट, कितना जो क्लोथ है बच गया। क्लोथ लेफ्ट इज इक्वल टू 8/9 माइनस 3/9, 8/9 माइनस 3/9, दैट इज आफ्टर टेकिंग द कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज 9, 8 minus 3 is 5, so the answer is 5/9 meter. So the portion या part of cloth left is, therefore cloth left is 5/9 meter. Okay, so this is our question number 4 of exercise 8.8. So you can just pause the video here beta and write down the solution. Okay, okay, चलिए moving next to question number 5. Prem took rupees 5/6 from his father and spent rupees 1/6 on papers. How much money does he have now? Okay, so देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 दैट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू डू बाय योरसेल्फ ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, लेट मी एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, ताकि आप करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बट अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट। द क्वेश्चन क्या था, प्रेम टोक रुपीज 5/6 फ्रॉम हिज फादर। तो देयर इज अ बॉय हुज नेम इज प्रेम, एक लड़का है जिसका नाम प्रेम है, एंड ही हैज टेकन, उसने अपने पापा से कितने पैसे लिए, 5/6 रुपीज 5/6। ओके, और उसमें से उसने जो 1/6 रुपीज थे he has spent on papers. So total money he got from his father is equal to 5/6 rupees 5/6. Money spent on papers is equal to rupees 1/6. Next आपको क्वेश्चन बताना क्या है निकाल के, how much money does he have now? Now you have to calculate the total money that is left with him after spending on papers. So the money left with him is equal to 5/6, rupees 5/6 minus rupees 1/6, and after the subtraction whatever answer you will get, that is your answer. Okay, so just try to do this by yourself only, question number 5, and if you will be having any problems, any issues, and I'll be there so I'm here to solve it. Okay, so let's move to question number 6 of the same exercise 8.8, that is, if 1 meter cloth cost rupees 100, how much will 3/4 meter cost? Okay, so वो कह रहे हैं कि 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी है, दैट इज रुपीज 100, एंड 3/4 मीटर क्लोथ की हमें कॉस्ट बतानी है। तो देखिए इसमें, अच्छा इसमें देखिए जो ये स्टेटमेंट सम्स है, इसमें एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, एंड फर्दर यू विल फाइंड आउट दैट देयर विल बी डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एज वेल। ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे कि हमने जो एक्सरसाइज 8.2 है उसमें जो 10th सम है उसमें भी हमने किया था कि हमें किसी चीज का पोर्शन निकालना था, 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ अ लीटर, मतलब जो भी था अलग अलग उसको निकालता। वैसे ही सेम ये भी है बेटा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, देखिए 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द 3/4 कॉस्ट ऑफ 3/4 मीटर क्लोथ। सो लेट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 6, cost of 1 meter cloth, 1 meter cloth की कॉस्ट कितनी, दैट इज रुपीज 100. डोंट फॉरगेट टू राइट द रुपीज साइन हियर. ओके, नेक्स्ट इज हमें किसकी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 3/4 मीटर क्लॉथ.
3/4 मीटर क्लॉथ की आपको कॉस्ट निकालनी है, दैट इज कैसे निकालोगे? दैट मीन्स अगर आप जो 100 रुपीज है इसका 3/4 पोर्शन फाइंड आउट करोगे, यू विल गेट द अमाउंट. If you will find out the 3/4 portion of this 100 rupees, you will get that amount. So that means आपको क्या करना पड़ेगा? That you have to find the 3/4 of rupees 100. Okay, so now you have to find the 3/4 of rupees 100. So 3/4 of rupees 100 that you have to find out. Now next आपको बताया था मैंने कि अभी जब सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं, जस्ट पुट द इज इक्वल टू साइन देयर. सो 3/4 ऑफ किस में चेंज हो जाएगा? तो साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. रुपीज का साइन एक बार हटा देंगे कैलकुलेशन के लिए एंड 100. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3/4 विद 100. देखिए मैंने ये ऑनलाइन क्लास जब ली तभी मैंने आपको समझाई थी ये बात कि चाहे तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं 100 को 3 से, चाहे तो आप 100 को एक फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं. इट इज टोटली अप टू यू. तो अभी तक हमने फ्रैक्शन के साथ किया था कि पहले फ्रैक्शन में चेंज करके फिर करते थे, अब इसको डायरेक्टली हम कर लेंगे. तो बेटा अगर कोई नंबर दिया होता है उसको हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. इफ अ नंबर इज गिवन वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद न्यूमरेटर ओनली. ओके, सपोज यहाँ पे 100 दिया है तो हम एज्यूम करते हैं इस 100 के नीचे 1 है. दिस इज द अजम्पशन. ओके, अगर इन केस सम ऐसा कुछ होता जिसमें कि 1/100 होता, इन केस अगर इसको समझना तो इसको हम इसको एज ए फ्रैक्शन ही लेंगे, ठीक है. बट अगर अकेला कोई नंबर अकेला दिया हुआ है तो वी एज्यूम इट एज 100/1. तो मतलब उसके नीचे हम डिनोमिनेटर को 1 एज्यूम करते हैं. ओके, सो देखिए नाउ वी आर गोइंग टू डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस 100 विद 3. सो मतलब कोई भी अगर नंबर दिया आपको उसको डायरेक्टली न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई इट. 3 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 300. 4 के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट विल बी 4. सो द आंसर इज 300/4. बट दिस इज नॉट द आंसर, इसका कुछ पोर्शन है अभी और. देखिए ये हमारा रुपीज 3/400, रुपीज 300/4 सॉरी. सो द आंसर इज रुपीज 300/4. सो क्या आप बता सकते हो कि रुपीज 300/4 क्या होगा? वी कांट टेल इट. सो हम क्या करेंगे? फॉर दैट वी आर गोइंग टू डू द डिवीजन. ओके, अब हम इसको रुपीज 300/4 को डिवाइड करेंगे. दैट मीन्स द न्यूमरेटर इज द डिविडेंड, 4 इज द डिवाइजर. So now we are going to divide it and we are going to show this division in rough. इसको आप rough में करिए. 300/4. This is the rough portion. Okay. 4 7s are 28 minus 2 0. अब ये 2 नीचे आए that will become 20. 4 5s are 20. So the answer is 75. इज इक्वल टू रुपीज 75. तो ये हमारा रफ का वर्क है इसलिए मैं इसको इरेज कर देती हूं. ओके, सो देखिए दिस इज अवर आंसर. दैट इज द कॉस्ट ऑफ 3/4 मीटर क्लॉथ इज रुपीज 75. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. देखिए अभी तक हमने जो सम्स किए हैं फ्रैक्शन के उसमें हमने पहले एडिशन किया. तो पहले हमने सिंपल फ्रैक्शंस निकाली, फिर देन वी हैव स्टार्टेड विद एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन एंड देन नाउ इट इज द मल्टीप्लिकेशन आल्सो. ओके, सो देखिए क्वेश्चन क्या था. दैट क्वेश्चन वाज गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ. सपोज दिस इज अ 1 मीटर क्लॉथ एंड द कॉस्ट ऑफ दिस क्लॉथ इज दिस दुपट्टा इज रुपीज 100. ये दुपट्टा 100 रुपीज का है. अगर मैं इसका 3/4 पोर्शन फाड़ दूं, ठीक है, जो बाकी बचा हुआ कॉस्ट है मुझे उसकी बताना है. सो देखिए अगर मेरी पूरे जो दुपट्टा है 3/4 का मतलब कि जो दुपट्टा है उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. ओके, मैंने इस दुपट्टे को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो अब उसका 3/4 पोर्शन मैं यूज कर चुकी हूँ. मतलब जो 4 पोर्शन मैंने उसको डिवाइड किया था उसमें से 3 है वो मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ. अब मुझे बताना है जो बाकी बचा हुआ कितना है, कितना बचा. अगर हम 4 पोर्शन में से 3 पोर्शन यूज कर देंगे तो बचा हुआ कितना हुआ? दैट इज 1/4. तो मुझे अब हमें सॉरी बचा हुआ नहीं बताना, सॉरी. तो हमें जो मैंने जो यूज कर लिया है मुझे बताना है कि उसकी कॉस्ट कितनी है.
ओके, सो देखिए द क्वेश्चन वाज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ दैट इज ₹100. सेकेंड, कॉस्ट ऑफ 3/4 मीटर क्लॉथ वो हमें बतानी है. वो हम कैसे निकालेंगे? 3 अपॉन जो 100 रुपीज है उसका 3/4 निकालेंगे तो हमारे जो 1 मीटर क्लॉथ की 3/4 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट भी आ जाएगी. ओके, तो कॉस्ट ऑफ 3/4 मीटर क्लॉथ इज बाय फाइंडिंग 3/4 ऑफ ₹100. सो अब देखिए वही मैंने एज इट इज यहाँ लिखा 3/4 ऑफ ₹100. 3/4 ऑफ ₹100. 3/4 ऑफ चेंज इनटू साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. 100 इज एग्जैक्टली सेम. अब देखिए इसमें मैंने एक चीज क्या की, मैंने बोला कि नीचे चाहे तो आप एज्यूम 1 करके भी कर सकते हैं. ठीक है, इसको भी फ्रैक्शन बना के, या तो डायरेक्टली आप 100 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. जब भी कोई डिजिट दिया होता है सामने जो कि फ्रैक्शन नहीं हो और दूसरी नंबर है जो फ्रैक्शन हो, तो उसको हमेशा हम न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं. क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 3 विद 100. 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 300. 4 यहाँ पे कुछ नहीं तो डायरेक्टली 4. सो द आंसर इज ₹300/4. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा इस दुपट्टे की कॉस्ट कितनी है, आप बोलोगे ₹300/4, तो क्या मुझे समझ में आएगा? नो. सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू अ प्रॉपर नंबर. मतलब एक उस फ्रैक्शन का एक नंबर निकालेंगे कि उसका नंबर कितना है, उसकी कॉस्ट कितनी है एग्जैक्टली. सो बाय डिवाइडिंग 300 विथ 4 वी गॉट ₹75. वी गॉट ₹75. सो ये ₹75 क्या है? This ₹75 is the cost of 3/4 meter of cloth. Okay, so this ₹75 is the cost of 3/4 meter of cloth. Okay, so देखिए अभी तक तो यहाँ पे मैंने आपको करवाया कि जो भी कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट है ऑफ 3/4 meter cloth. But okay, one thing is missing here, that is the solution sentence. You have to write the solution sentence also. Okay, so let's find out. Okay, just write it like this. You can write the cost of or the price of, जो आपके ऊपर है. बेटा कभी भी जो मैम बताते हैं एग्जैक्टली उसी को कॉपी मत किया करिए. इफ यू कैन डू बेटर देन यू कैन राइट योरसेल्फ ऑल्सो. ओके, जरूरी नहीं है जो एग्जैक्टली मैंने वर्ड्स लिखे हैं वही लिखिए, बट जस्ट मेक श्योर वट एवर यू राइट दैट शुड बी करेक्ट. मतलब जो भी आप लिखते हो वो करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू टू जस्ट क्रैम इट और जस्ट टू राइट इट लाइक दिस सेम ओनली. You can write it according to your level. If you feel something कि मतलब कुछ और स्टेटमेंट भी बन सकती है, जैसे कि मैंने कहा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, यू कैन राइट इट लाइक द प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ. ओके, क्लॉथ कॉस्ट ऑफ 3/4 मीटर क्लॉथ. ओके, सो हमने इसमें 3/4 मीटर क्लॉथ है उसकी कॉस्ट निकालनी है. सो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज ₹100. कॉस्ट ऑफ 3/4 मीटर क्लॉथ इज, we will find the 3/4 of ₹100. So after finding the 3/4 of ₹100, we get ₹75 as our answer. Okay, so after this we are going to write a solution sentence. ये क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं हुआ, हमें इसका भी सॉल्यूशन सेंटेंस भी लिखना है. So let's write it also. Let me erase it first. Okay, देखिए बुक में क्वेश्चन क्या पूछा था, जो क्वेश्चन लाइन है वो क्या थी? The question line was how much will 3/4 meter cost? 3/4 meter cloth cost मतलब, so here we are going to write it, the cost of 3/4 meter cloth is ₹75. Okay, so लिखेंगे solution. Therefore cost of 3/4 meter of cloth is ₹75. Okay, so this is the solution sentence that is must whenever you do a question related to the statement. Sorry, whenever you do a statement sum. जब भी आप स्टेटमेंट सम करेंगे, जस्ट मेक श्योर यू ऑलवेज राइट द सॉल्यूशन सेंटेंस एट दैट. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज कॉस्ट ऑफ 3/4 three dots here. Therefore cost of 3/4 meter of cloth is ₹75. Okay, so this is your question number 6.
Okay, so you can just pause the video here and write it down. Okay. Okay, so this was question number 6 of exercise 8.8. Okay, so this was our today's session class. Okay, so with this I'm ending our today's session here only. But one thing that I want to tell you, that you have to do question number 5, that is 5 now, yes, question number 5 of exercise 8.8 by yourself only. Try to do it yourself, beta. You can easily do it. Okay, if you will find any problem, I'll be there to help you out. Okay, so okay, good day and see you soon.